back here with another topic of public administration. Today we will discuss in detail about the evolution of public administration. So the evolution of public administration is basically divided in six different parts. We will study each of the parts in detail. So first one is basically the classical school. Second one is the human relations school. Third one is behavioral school. Fourth one is system school. Fifth one is management sciences school. Sixth one is power and politics school. So all of these are basically the different school of thoughts of public administration. First, classical school of thought. Firstly, I have enlisted the contributors in the classical school of thought. These are Woodrow Wilson, Leonard D. White, W. F. Philip By, Frederick Winslow Taylor, Henry L. Gantt, Frank and Lillian Gilbreth, Max Weber, and Henry Ford. Now we will study in detail about all of these contributors and their contributions in the subject of public administration. Woodrow Wilson. Woodrow Wilson basically wrote an essay which was titled as the study of public administration. Sorry, the study of administration in 1887. He was basically an American scholar and also the president of USA. So Woodrow Wilson क्या कहता है, उसने अपने essay में कुछ points highlight किए थे about the study of administration. हम उन points को देख लेते हैं कि वो क्या points थे. This was basically his contributions towards the administration of the state. To address the inefficiency and corruption in USA government in late 1880s. उसने अपने essay में basically 1880s में USA की गवर्नमेंट में जो करप्शन थी उसको हाईलाइट किया और उसने इसी चीज़ को जो है वो बेसिकली अपनी स्टडी में एड्रेस भी किया कि किस तरह से बिकॉज ऑफ द इनएफिशिएंसी कि जब हम इनपुट दे रहे होते हैं लेकिन हमें आउटपुट नहीं मिल रहा होता, इन तमाम रीजंस की वजह से कैसे गवर्नमेंट करप्शन की तरफ मूव करती है. उसके बाद he said that political scientists had given little attention to how government operates. उसने कहा कि जी बहुत सारे लोगों ने बहुत डिफरेंट चीज़ों पे फोकस किया, अल्टीमेटली थ्योरीज पे फोकस किया, इस चीज़ पे भी फोकस किया गया कि गवर्नमेंट जो है वो रन की जानी चाहिए, कि क्या पावर्स होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, लेकिन किसी ने भी एडमिनिस्ट्रेशन पे गौर नहीं किया कि अगर कोई शख्स पावर में आ जाता है तो उसके बाद उसने अपनी पावर को कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे उसने अपने स्टेट के रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूटिलाइज करना है और अल्टीमेटली उसने आउटपुट गेन करना है. उसके बाद ही वाज इम्प्रेस्ड बाय द बिजनेस इंडस्ट्री एंड टेक्नोलॉजी. उसने कहा कि किस तरह से बिजनेसेस, इंडस्ट्रीज और टेक्नोलॉजी में तरक्की हो रही है या फिर वो डेवलप कर रहे हैं ये तमाम जो बेसिकली highlighted professions है. The reason for this particular thing is their administrative structure. कि वो बहुत प्रोफेशनली काम कर रहे होते हैं और उनकी प्रोफेशनल वर्किंग की वजह से अल्टीमेटली बिजनेस, इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजिकल सेक्टर इम्प्रूव हो रहा है, तरक्की कर रहा है, डेवलप्ड हो रहा है. लेकिन गवर्नमेंट ऐसा नहीं है. गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रही. He believed that the work of the government should be accomplished with the efficiency of the private sector. उसने कहा कि गवर्नमेंट को भी बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर की तरह काम करना चाहिए और जनरल पब्लिक को एज अ क्लाइंट कंसीडर करना चाहिए. और जब हम क्लाइंट सेटिस्फेक्शन की बात करते हैं तो अल्टीमेटली स्टेट की परफॉर्मेंस और गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस जो है वो खुद ब खुद बेहतर होती जाती है. He believed that there should be separation of politics from the administration. एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको उसने हाईलाइट किया, उसने कहा कि जी
आपको पॉलिटिक्स को एडमिनिस्ट्रेशन से जो है वो सेपरेट रखना चाहिए। आपकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पॉलिटिक्स से डिफरेंट चीज़ है। पॉलिटिक्स में आप सिर्फ उन चीज़ों के लिए काम करते हैं जो आपको पर्सनली फ़ायदा दे रही होती हैं, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन में बेसिकली आप स्टेट की बेनिफिट, स्टेट की डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे होते हैं। सो यू हैव टू डिफरेंशिएट both of these institutions. Politics is a different thing where the basic purpose is basically uh, the basic purpose of the politician is basically to get their own benefits. But in administration, you basically have to administer the state by utilizing all the resources of the states, and you have to manage all the resources in an effective and efficient manner. उसके बाद आ जाती है जो कॉन्ट्रीब्यूशंस लेनार्ड डिवाइड की। सबसे पहले हमने देखी वुडरो विल्सन की। वुडरो विल्सन इज आल्सो कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो हम कॉन्ट्रीब्यूशंस देखेंगे दैट विल बी ऑफ लेनार्ड डिवाइड। अच्छा जी, लेनार्ड डिवाइड ने भी एक आर्टिकल लिखा था ऑन उस आर्टिकल का टाइटल क्या था? इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। दिस आर्टिकल was basically written in the year 1926 by Leonard Dwight, और उसने अपने पेपर में जो है किस चीज़ को हाईलाइट किया? उसने कहा कि जी he commented that government should function in the context of democratic values like role of state in human affairs. According to him, there are two concerns in the public administration. First one is efficiency, second one is democratic values. अच्छा जी, जो मेन फोकस था वुडरो विल्सन का, उसने ये कहा कि जी पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन को जो है वो डिफरेंट होना चाहिए। लेनार्ड डिवाइड क्या कहता है? वो ये कहता है कि गवर्नमेंट को जब भी काम करना चाहिए उसके फंक्शंस एफिशिएंसी पे बेस करने चाहिए, उसके साथ साथ उनको डेमोक्रेटिक वैल्यूज का भी ख्याल करना चाहिए। एफिशिएंसी क्या थी? टू इम्प्रूव द फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, लाइक देयर विल बी मिनिमम इनपुट एंड मैक्सिमम आउटपुट, कि आप ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शंस को इम्प्रूव इस तरह से करते हैं कि आप मिनिमम इनपुट देके मैक्सिमम आउटपुट ले लेते हैं। तो इसके बाद उसने कहा कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज दैट द ऑर्गेनाइजेशन शुड कीप इन व्यू द डेमोक्रेटिक वैल्यूज इन प्रोवाइडिंग द सर्विसेज। चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन है चाहे वो गवर्नमेंट है, उसने डेमोक्रेटिक वैल्यूज का ख्याल रखना है कि if they are in an office or they are in the power, ultimately they are in the power just because of the general public. So what they are there for? They are there to serve the general public. So these are the basics that they have to consider whenever they are making like any kind of policy that is related to the basically any of the government. तो वुडरो विल्सन बेसिकली किस चीज़ पे फोकस करता है? एफिशिएंसी पे। और दूसरा उसने फोकस किया था कि जी गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन दो डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स हैं। रेनॉल्ड डिवाइड क्या कहता है कि जी गवर्नमेंट को एफिशिएंसी पे फोकस करना चाहिए, उसके साथ साथ डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे, लाइक providing services to the public because you are the one who are chosen by the public to basically serve them. उसके बाद है जी डब्ल्यू एफ विलिफ बाय इन हिज आर्टिकल प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन which was published in 1927. He basically emphasized on the idea of value free science of management. By value free services, he meant that those executing public programs should be neutral, unbiased, and provide services without discrimination. अच्छा जी, वुडरो विल्सन क्या कहता है? एफिशिएंसी। और दूसरी चीज़ जो उसने हाईलाइट की वो थी कि पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंट चीज़ें हैं। इसके बाद हमने पढ़ा उसके बाद हमने किस चीज़ पे बात की कि जी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पे और एफिशिएंसी पे। और अब जो हम बात कर रहे हैं दैट इज़ बेसिकली वैल्यू फ्री सर्विसेज, लाइक द सर्विसेज कि जब भी गवर्नमेंट अपनी सर्विसेज परफॉर्म कर रही होगी इन द पब्लिक ऑफिसेज, और जब भी पब्लिक प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट किया जा रहा होगा
पब्लिक प्रोग्राम्स को, पब्लिक पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया जा रहा होगा, तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को या गवर्नमेंट हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं उनको या ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको इस बात का ख्याल रखना है कि उनका जो भी डिसीजन हो दैट मस्ट बी न्यूट्रल, कि वो न्यूट्रल होना चाहिए, अनबाइस्ड होना चाहिए, किसी को भी पर्सनल फेवर नहीं देनी चाहिए, बट अल्टीमेटली उन सर्विसेज को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। उसमें उसने एक चीज़ ऑब्जर्व की, उसने देखा कि सेम शवल है और जब उस सेम शवल से कोल जो है वो उठाया जाता है तो वो जब उसका वज़न किया जाए तो दैट इज़ ओनली 3.75 पाउंड। और अगर सेम शवल से आप आयरन उठाएं तो उसका जो वज़न है और वी कैन से द वेट इज़ बेसिकली 38 पाउंड्स। सो दैट ऑफ कोर्स 38 पाउंड्स इज़ मोर। तो उसने कहा कि जी मस्त एक शवलिंग एक्सपेरिमेंट कराते हैं, जिसके लिए उसने जो है दो बेस्ट शवलर्स जो हैं उनको सिलेक्ट किया और उन्हें ये कहा कि अगर उन्हें डबल वेजेस पे की जाएं तो what they basically have to do, they basically have to perform best in favor of the company. So what basically he has done, उसने जो है वो कोल के लिए एक बड़ा शवल बनवाया और आयरन के लिए वो सेम शवल रहने दिया। उसके बाद उसने उन वर्कर्स को काम पे लगाया। बोथ ऑफ द वर्कर्स जो है दे हैव like worked for the whole day ultimately on the different places, or at the end of the experiment what they basically have observed that what was the number of shovel full in a day by each worker and weight of the load in shovel, that was approximately 38 to 39 pounds by each the worker. तो उसके बेसिकली एक्सपेरिमेंट ने रिजल्ट क्या दिए, उसके एक्सपेरिमेंट ने ये रिजल्ट दिया कि अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को बेस्ट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें, आपके एम्प्लॉयज़ अगर वेल ट्रेंड हों और अगर वो प्रॉपरली काम करें तो आप उनसे ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। लाइक द एफिशिएंसी कैन बी इम्प्रूव्ड अल्टीमेटली whenever you will provide the best services and the best quality things to your workers. और आपको पता होना चाहिए कि what is the right load, लाइक आपने अपने एम्प्लॉयज़ से किस तरह से काम लेना है। लाइक अगर वो सेम शवल से काम करते रहते तो जाहिर है काम जो है वो डिले का शिकार रहता, लेकिन नाउ दे हैव चेंज द स्ट्रैटेजी। उन्होंने जो उसका वेट था उसको इक्वलाइज किया एंड अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे they were able to get the best benefit out of it. So results of the experiment, there is a scientific way of doing thing and that is he called it one best way. उसने कहा कि हर चीज़ को करने का जो है वो एक साइंटिफिक तरीका होता है and there's always one best way to call to basically perform any of the task. Replace rule of thumb with science. और उसने जो है वो रूल ऑफ थंब को साइंस से रिप्लेस कर दिया कि उसमें रूल ऑफ थंब क्या था कि जी ये एक शवल है एंड यू जस्ट हैव टू जूस, लेकिन उसके बाद उसने क्या साइंस लड़ाई, व्हाट वाज द टेक्निकलिटी इन दिस कि जी अगर आप सेम शवल यूज़ करते रहें तो कोल का वज़न कम होता है। जाहिर है अब एक टाइम में वो एक ही शवल उठा के दूसरी जगह पे रख सकते हैं, लाइक दूसरी जगह डाल सकते हैं, दो शवल तो नहीं ज़ाहिर है यूज़ हो सकते। तो यू जस्ट हैव टू परफॉर्म साइंटिफिकली। उसके बाद है जी ऑब्टेन हार्मनी इन ग्रुप एक्शन रादर देन डिस्कॉर्ड, कि आप अपने जो भी लोग आपकी ऑर्गेनाइजेशन परफॉर्म कर रहे हैं उनको आप बेस्ट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें, अचीविंग कोऑपरेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स रादर देन क्वाटिक इंडिविजुअलिज्म, कि आप उनके दरमियान आपस में कोऑपरेशन रखें जिसकी वजह से वो बेहतर परफॉर्म कर सकें, वर्किंग फॉर मैक्सिमम आउटपुट रादर देन रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट, के उसमें जो है वो रिस्ट्रिक्टेड आउटपुट क्या थी, क्या प्रोडक्टिविटी के जी बस ठीक है एक दिन में हम जो है वो अगर कोल सिर्फ इतना आ रहा है और आयरन ज़्यादा आ रहा है तो दैट इज़ परफेक्टली ओके, इसको चेंज नहीं किया जा सकता, बल्कि आप साइंटिफिकली चीज़ों को सोचें और मिनिमम इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट हासिल करें। अब देखिए शवल का साइज़ बड़ा करने से हमने क्या किया कि सेम वही पुराने वाली इनपुट जो है वो वर्कर दे रहा है, लेकिन अल्टीमेटली हमें आउटपुट ज़्यादा मिल रहा है।
developing all the workers to the fullest extent for their own and company's prosperity, कि आप वर्कर्स को बेस्ट एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें ताकि वो आपके लिए यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए या फिर गवर्नमेंट के लिए प्रॉपरली परफॉर्म कर सकें. एंड वर्कर्स शुड बी केयरफुली सेलेक्टेड, कि जब भी वर्कर्स को सेलेक्ट किया जा रहा हो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, दे मस्ट बी केयरफुली सेलेक्टेड, कि वो काम करने के काबिल हो और वो ऑर्गेनाइजेशन को बेस्ट आउटपुट दे सकें. सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स. बाकी साइंटिस्ट जो है वो इंशाल्लाह या फिर कंट्रीब्यूटर्स के कॉन्ट्रीब्यूशंस हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. लेकिन यहाँ जो चीज़ हमने बेसिकली देखी वो क्या थी कि क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट किस चीज़ पे फोकस कर रहा है, एफिशिएंसी पे फोकस कर रहा है. क्लासिकल स्कूल ऑफ थॉट बेसिकली इस चीज़ पे फोकस कर रहा है कि एडमिनिस्ट्रेशन और जो हमारे पास पॉलिटिक्स है, दीज आर टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशन. उसके बाद जो है वो वैल्यू पे बात कर रहा है कि आपने अपने वर्कर्स को वैल्यू करना है, तभी आप मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं. और वैल्यू करने से उसके बाद आपने किस चीज़ पे बिलीव करना है, साइंटिफिक वे पे बिलीव करना है, चाहे वो गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है. जब भी आप कोई काम करेंगे, you must consider a scientific way of doing that particular task to get the best output from that particular thing. Thank you so much. If you have any queries, you can ask. You can definitely ask. Thank you so much. Hope to see you in the next lecture, inshallah.